جی حضرت، ابھی میں جی سن رہا تھا آپ لوگوں کی طرف سے ریگارڈنگ کوئی شہنواز کر کے آیا تھا، جی بڑا بدتمیز طریقے سے بات کر رہا تھا آپ لوگوں سے، عالم سے بات کرنے کا طریقہ نہیں۔ لیکن یہاں پر جیسے بات ہوتی کسی سے، لوگ کہتے تم لوگ کہتے ہو کہ یہاں پر بدعت لغوی مراد ہے، اس طرح کس محدث نے کس نے تقسیم کی، کس نے اس کی شراحت کی ہے کہ یہاں پر بدعت لغوی مراد ہے بدعت شرعی، تو اس کو کیا جواب دیا جائے؟ ٹھیک دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کامن سینس یعنی ہمیشہ چل رہی ہوتی ہیں بھائی، یعنی ایک زبان ہے نا، تو ہم زبان میں الفاظ بولتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں لفظ بولتے ہیں، کس محدث نے بولا ہوا ہے؟ ہاں لفظ میں بولا تو کس نے بولا ہوا ہے؟ عربی زبان کے الفاظ ہیں تو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو بھائی ایک زبان ہے، اس زبان کے پورے الفاظ ہیں، وہ زبان جس معنی میں بولی جاتی ہے اس معنی میں سمجھا جائے گا۔ تو اب کوئی لفظ جب کوئی آدمی بول رہا ہے، کوئی لفظ جب آدمی کوئی بول رہا ہے تو اس کو کس حدیث کا لفظ ہے مثلا؟ اب حدیث کا لفظ ہے تو حدیث معنی بات ہوتا ہے۔ اب عام طور پہ جب حدیث کا لفظ آئے گا بات ہوگا، خبر کا لفظ ہے، خبر معنی نیوز ہوگا، لیکن خبر جب حدیث میں استعمال ہوگی تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ تو اب یہ کہنا کہ حالانکہ کہا ہے، حالانکہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ آپ نے کہا کہ بھائی یہاں لغوی معنی میں استعمال ہے، تو لغوی اور جو ہے شرعی معنی کی تقسیم یہ کس محدث نے جو ہے اجازت دیا ہے یا کس آیت میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں کہاں ہے، یہ اس طرح نہیں ثابت ہوگا۔ یہ استدلالات کے جو اصول ہیں ان اصولوں سے بات ثابت ہوگی، تو فی نفس یہ سوال ہی غلط ہے۔ اچھا، اب امام ابن رجب حنبلی کا حوالہ تو ابھی ہم نے دیا، اور بھی علماء کے حوالے اس بارے میں موجود ہیں کہ اس طرح کے الفاظ جب بدعت کے لفظ آتا ہے تو اس سے ان کی کیا مراد ہے۔ اور اچھا ابھی یہ صفت کی بحث چل رہی ہے تو اس پر ایک مجھ کو یہ ذہن میں آ گیا کہ بھائی یہی لوگ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بدعت کا لفظ یہاں پہ لغوی معنی میں استعمال کیا تو وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جب معاملہ آتا ہے اور اس کا ہم ایک ظاہری لغوی معنی مراد لیتے ہیں قرآن مجید کے اندر، تو یہی لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہاں، یہ جو آ کر کے بدعت کے مسئلے میں ہم سے لڑائی کر رہے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات کے جو الفاظ آئے ہیں قرآن مجید کے اندر، ید آیا ہے، وجہ آیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی لفظ کا لغوی معنی ہی پہلے مراد لیا جاتا ہے، تو جو اس کا لغت میں معنی ہوتا ہے ہم اس کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ لغت میں جو معنی ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور نعمت البدعۃ حاضی جب لفظ آتا ہے تو ہمارے سے کہتے ہیں کہ اس کو لغوی معنی میں استعمال کیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اللہ کے بندو، اگر یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ لغوی معنی ہی اس کا مراد ہے، تو پھر آپ دیکھیں نا کہ دوسری جگہوں پر بھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر لغوی معنی مراد ہے، تو وہاں مراد کیوں نہیں لیتے ہیں لغوی معنی؟ تو بہرحال یہ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ سلف میں کس نے کہا ہے، تو ہم نے تو جب یہ اسٹریم چل رہی تھی تبھی آپ کو بتا دیا تھا کہ علماء نے، بہت سارے لوگوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہاں پہ بدعت سے مراد لغوی بدعت ہے، بلکہ جن بعض علماء، یہ بہت سارے بتا علماء دیجیے نہیں، نا ایک بعض دو نام۔ علماء کو بدعت حسنہ کی دلیل مل جاتی کہ بدعت حسنہ انہوں نے استعمال کیا ہے، پر جب انہی کے اقوال میں آپ تشریح دیکھتے ہیں اور اس تشریح میں جو مثالیں وہ بدعت حسنہ کی دیتے ہیں، تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے بدعت کو کس معنی میں مراد لیا ہے۔ جیسے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ بعض بدعت حسنہ ہوتی ہیں، اور وہ بدعت حسنہ کی دلیل کے طور پہ دنیاوی ایجادات کی مثالیں دیتے ہیں کہ دنیا میں فلاں فلاں چیزیں ایجاد ہوئی ہے۔ تو جو علماء بدعت حسنہ کی تعبیر استعمال کر رہے ہیں، تو کس چیز کو بدعت حسنہ کہہ رہے ہیں وہ بھی دیکھیے ان کے اقوال میں جا کر کے۔ وہ جو ہے وہ بدعت حسنہ کہہ رہے ہوتے ہیں دنیا میں ایجاد کرنے والی چیزوں کو، یا بعض وسائل کو، جو دین کے وسائل ہوتے ہیں ان کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ تو جب جن علماء نے، بعض ایک علماء نے اگر بدعت حسنہ کی تعبیر استعمال بھی کی ہے، تو جو مثالیں انہوں نے اس کے لیے دی ہیں اس کو جا کر کے دیکھیں، آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ یہ شرعی بدعتیں نہیں ہیں۔ تو ان کے ایک تو علماء نے خود وضاحت کی ہے بعض سلف کے اقوال کی روشنی میں کہ یہ بدعت جو ہے وہ بدعت حسنہ ان سے مراد ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جن علماء نے بدعت حسنہ کی تعبیر استعمال کی ہے، جب ان کے اقوال کی تفصیل میں آپ جاتے ہیں اور ان کی مثالوں کو آپ دیکھتے ہیں، تو آپ کو خود سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ سے دین میں ایجاد ہونے والی بدعتیں مراد نہیں لے رہے ہیں، بلکہ دنیا میں ایجاد ہونے والی بعض چیزیں اس کی مراد لے رہے ہیں۔ جی جی، جب ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں تو ایک اور اس پر کہتے ہیں کہ تم لوگ جو مائک پہ نماز پڑھاتے ہوئے دنیاوی بدعت ہے یا دینی بدعت ہے، مائک پہ اذان دیتے ہوئے دنیاوی بدعت ہے یا دینی بدعت ہے، بخاری شریف کے ختم بخاری کرتے ہو، تو یہ سب کیا ہے؟ بھائی ان تو پھر ساری کیا چیزوں کا جواب دیں؟ جواب ہو چکا، ابھی ہم نے کہا نا کہ وسائل کو دین کا حصہ نہیں مانتے ہم۔ مائک کیا ہے؟ دین کا ایک وسیلہ ہے۔ صحیح بخاری کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ تو بدعت کہتے ہیں دین کے اندر کسی چیز ایجاد کرنے کو۔ مائک جو ہے وہ دین کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ایجاد کی گئی ہے، وہ ایک وسیلہ ہے نماز پڑھنے کا۔ صحیح بخاری دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی گئی ہے، وہ ایک وسیلہ ہے دین سیکھنے کا۔ شبان بھائی اس کا جواب دے چکے، اس سے پہلے بھی میرے خیال سے کچھ بتا دیں ہمارے کو۔ مطلب وسیلہ کے طور پر کریں گے تو جائز ہو جائے گا؟
अरे भाई बिदात की जो तारीफ भी है वो भी देख लीजिए ना कि बिदात वो अरे भाई चीज है सही जो दीन में इजाद किया गया हो नया और उसके तकाजे जो है मौजूद ना रहे हों और कोई माने भी। तो ये तीनों बातें आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। भाई जरा बिदात वाली स्ट्रीम आप लोग पीछे देख लें तो ये सब हैरान नहीं करेंगे। मैं एक बार आपसे आप कर लोग रहा हूँ, मैं महानारी आपसे देखेंगे। पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अगर मिसाल दीन में देखिए नई किताबों चीजें, से। दीन में अगर नई नई चीजें इजाद करने की इजाजत है, अजान के अंदर जो है ना आखिर में कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके आगे अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह बढ़ा दिया जाए तो क्या हर्ज है? ये बिदअत हसना है या बिदअत सय्या है? अकरम भाई जवाब दें। अकरम भाई, तो आप बताएंगे ना, अजान में हम लोग आखिर में कहाँ ला इलाहा हमारे इल्लल्लाह है, उसके बाद अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह बढ़ा दिया जाए तो ये बिदअत हसना है या बिदअत सय्या है? ये खत्म बुखारी का प्रोग्राम और ये जो मैं मोबाइल जो पे पूछ जैसे रहा हूँ दीन उसका सीख जवाब रहे दीजिए हैं, ना कि बोलता है अगर कि ला ये तो इलाहा है इल्लल्लाह के बिदअत। बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह बढ़ा दिया जाए, अजान में अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह बढ़ा दिया जाए तो ये बिदअत हसना है कि बिदअत सय्या है? अकरम भाई जवाब दे, जो आपको सही लग रहा है गलत लग रहा है कुछ तो बताओ। मुझे नहीं मालूम। आपके भाई हिसाब से एक नहीं बात तो मालूम है हमें, क्या? अभी जो तो आप आपका बहस कर जवाब रहे थे ना बताना कि है दीन में नई गलत है, चीजें इजाद करना है। इनको अभी नहीं तो आप मालूम है। बहस कर रहे थे कि दीन में नई चीजें इजाद करना, अच्छी चीजें इजाद करना अच्छा है, तो मोहम्मद ठीक है, रसूलुल्लाह नहीं कर अच्छा है कि सकते, बुरा है बढ़ा देना? हाँ, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये हैं भाई? सब बताए थे। इससे मोहम्मद रसूलुल्लाह से अच्छी बात और क्या हो सकती है दीन के अंदर? ये तो मखसूस मतलब इतने ही कलिमात हमें हदीस से मिलते हैं ना, इस पे ज्यादती क्यों कह रहे हैं? अच्छा, एक कलमे में जाती नहीं कर सकते हैं और एक ईद में जाती करने दो, एक ईद बढ़ा सकते हैं दीन में। ईद नहीं, खत्म बुखारी, जो खत्म भाई बुखारी की महफिल मैं होती ईद है। मिलाद मनाते ना, जो बिदअत हसना की, जो बिदअत हसना की, जो बिदअत हसना, हम आप खत्म मेरे बुखारी सवाल को का दीन नहीं जवाब नहीं दे समझते, रहे, आप हम उल्टा खत्म मुझे से बुखारी को क्यों दीन चल ही रहे नहीं समझते। बुखारी एक वसीला है दीन का इल्म हासिल करने का। मैं कह रहा हूँ जो लोग ईद मनाते हैं वही तो बिदअत, ईद मिलाद मनाते हैं वही तो बिदअत हसना की तरवीज करते हैं, वही तो बिदअत हसना को यानी सपोर्ट करते हैं। तो यानी मैं जिस कह तरह रहा हूँ ईद कि अगर मिलाद दीन में, मनाते हैं तो उस अगर तरह अजान में खत्म बुखारी कलिमा नहीं मनाते बढ़ा तो सही सकते है तो ना। एक दीन पूरा, एक ईद पूरी बढ़ा सकते हैं दीन के अंदर। यानी ईद मिलाद नबी जिस तरह मनाते हैं खत्म बुखारी शरीफ भी मना सकते हैं ना। मैं कह रहा हूँ ईद खत्म बुखारी शरीफ वैसी नहीं मनाते जैसे ईद मनाते हैं। खत्म बुखारी को तो हम वैसे भी, खत्म कैसे बुखारी हम मनाते नहीं हैं मनाते। वो अब लोग? खत्म बुखारी बिदअत है, तो वो बोलेगा खत्म जैसे बुखारी तुम जिस खत्म तरह, बुखारी कोई अगर मनाते हो खत्म ईद बुखारी इस तरह मिलाद से नबी हम मनाता भी है जिस वैसे ही तरह से मनाते ईद हैं। मिलाद मनाई जाए तो खत्म बुखारी मनाना बिदअत है। बस खत्म बुखारी अगर उस तरह से कोई मनाता है जैसे ईद मिलाद मनाई जाती है तो खत्म बुखारी मनाना बिदअत है। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ईद मिलाद मनाना बिदअत है कि नहीं है? किस तरह से मतलब बनाना बिदअत है और किस तरह से ईद नहीं, इसकी मिलाद मनाना बिदअत है थोड़ी कि नहीं है? तफसील ईद मिलाद मनाना बिदअत है कि नहीं है? नहीं मालूम। भाई आप बिदअत हसना की तायीद के लिए आकर के गुफ्तगू कर रहे हैं, जहां फंस जाते हैं वहां बोलते हैं आप नहीं मालूम है। तो जो लोग देखिए जो बिदअत जहाँ हसना की, अब ठीक जो है मुझ आपका पर नहीं मालूम, एतराज, अब आप चुप जो रहिए, अब मुझसे आप कोई मुखालिफ जवाब नहीं देंगे, पूछते हैं अब मैं आपसे हम उसी के बहस बारे नहीं में करेंगे। पूछूंगा आपको ना। नहीं मालूम है ना, आप खामोशी से जवाब आपको सुन नहीं लें। मालूम जब है, आप आपको साफ बहस साफ नहीं बोल करना दीजिए है, ना। आप शहनवाज भाई को जवाब नहीं रिमूव कर करना दिए है, अभी, नहीं मालूम बोल आपसे रहे हैं तो हम जवाब नहीं जवाब बन दे पा देंगे। रहा, बोल इनको दीजिए। खामोश कर आप दीजिए, फंस कर चुके दीजिए, हैं, आप इनको खामोश, शहनवाज भाई को बाहर इनको कर दिए खामोश, अभी। आप इनको उनको खामोश जवाब कर नहीं दीजिए। दिए, मुतमईन जवाब। आप 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 ऐसे अब करेंगे खामोश हो कैसे जाइए, जब चलेगा? आपको जवाब नहीं देना है तो आप खामोश हो जाइए। आप सवाल, अब हमारा जवाब सुन लीजिए, जब आप खामोश हो जाइए। बहस करना होता है ना तो जवाब भी देना होता है, ये नहीं कि जहां फंस जाएंगे वहां आप बोल देंगे नहीं मालूम है। जब आप खुद ये कह रहे हैं कि दीन में अजान में एक जुमला बढ़ा देना बिदअत सय्या है, तो दीन के अंदर पूरी ईद बढ़ा देना ये कैसे नहीं जी बिदअत नहीं। सय्या है? बस इतनी सी बात खत्म हो गई। जहां आपने खत्म बुखारी की बात कही, खत्म बुखारी के बारे में हम तो कह रहे हैं कि खत्म बुखारी जो अगर ईद मिलाद की तरह मनाता है तो वो बिदअत है। कोई अगर खत्म बुखारी को दीन का हिस्सा समझता है तो वो बिदअत है। कोई अगर खत्म खत्म बुखारी को बुखारी दीन का मरवी हिस्सा थोड़ी ना है, समझता है तो बिदअत है। अजान तो मखसूस, जो लोग बुखारी अजान खत्म तो करते मखसूस हुए कलिमात के हदीस साथ। सुनाने के लिए लोगों को जमा कर लेते हैं, अगर कोई उसको दीन समझता है तो बिदअत है। आप कहते हैं कि आप ईद मिलाद को दीन नहीं समझते हैं। खत्म बुखारी थोड़ी, चलिए खत्म भाई बुखारी खत्म हो थोड़ी गया, ना वक्त भी मरवी। खत्म हो गया, आप बात भी खत्म हो गई। बारकल्लाहु फीक। आप भाग रहे हैं, काना हाँ तक भाई जा तुम रहे खुश हो हैं। जाओ, मैं भाग रहा हूँ। ये इस स्ट्रीम में देखा गया है लोगों ने कि कौन किससे भाग रहे हैं, वो समझ में आ जाएगा लोगों को। आपको बताने की जरूरत नहीं कौन समझ में आ रहा अरे किसको। भाई बात करिए ना, आप बात करिए अरे ना। भाई वो बहुत ये बिदअत सपोर्ट करने वाले बहुत 12:30 सारे बजे लोग हैं, हमारा सबको टाइम देखा कि खत्म तुम हो भाग। जाता है, 12:35 हो अरे रहा है। फट गई, हालत खराब हो गई, मान लीजिए। ओहो, हाँ ठीक है भाई, हमारी हालत खराब हो गई, ये किसी सब में बात कोई घर में जाके बोलिएगा, यहाँ मत बोलिए, घर में जाके बोलिए, सब वहाँ ज्यादा सुनने वाले हैं। मतलब जवाब ये बंदा खुद नहीं दे पा रहा है, बोल रहा है मुझे नहीं मालूम और बोल रहा है हालत हमारी खराब हुई है।
चलो उम्मीद करते हैं वो भाई सोचेंगे, और ये ये सारे जितने इस तरह के बरेलवी जो है ना, सारे इनका भाई ये हैं, इनकी यही ट्रिक होती है, जहां फंस जाओ बोल दो हालत खराब हो गई। अब जवाब तुम नहीं दे रहे हो, हम सवाल कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि तुमसे जवाब नहीं बन पड़ रहा है और बोल रहे हो हालत हमारी खराब हुई है। अच्छा, ये हदीस की किताबों को जो बिदअत कहते हैं ना, एक साहब यहाँ पर आए थे आई प्लस टीवी पे ईद मिलाद के मौके पे बहस करने के लिए, 2 स्ट्रीम में उनसे बहस हुई थी। किसी ने मुझे आज लिंक भेजा, कहा कि सरफराज फैजी की धुलाई, तो मैं खुद सोचने में पड़ गया कि ये सरफराज कौन सी स्ट्रीम में हुई है भाई। तो मैं लिंक खोल करके देखा तो वो बंदा जिसको हम लोगों ने कहा था कि भाई जुमा की दलील दो, और वो उसने दलील दी, उसके बाद हमने कहा ऐसे ही थी मिलाद की दलील दे दो, उसने वो वीडियो काट करके अपने चैनल पे अपलोड किया है और उन्वान डाला है सरफराज फैजी की धुलाई। और नीचे मैं कमेंट देख रहा हूँ, सब लोग ये बोल रहे हैं भाई धुलाई तो तेरी हुई, तो सरफराज फैजी की धुलाई लिख रहा है, धुलाई तो तेरी, सारे कमेंट में सब यही बोल रहे हैं कि धुलाई तेरी हुई है। ऐसे ये जनाब आते हैं यहाँ पे जलील होकर के चले जाते हैं, भाग करके बोलते हैं आप डर गए। अल्लाह रहम फरमाए। अच्छा एक चीज वाज़ेह कर दूं, ये जो हदीसों की किताबों को बिदअत कहते हैं ना, अब छोटी सी मिसाल से आप समझें कि जैसे मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में अगर कोई एक हदीस मान लीजिए है कि इस्लाम के अरकान 5 हैं, वही मुस्नद अहमद में भी वो हदीस आ जाए इस्लाम के 5 अरकान है, सुनन अरबा में वही हदीस आ जाए, सही बुखारी में आ जाए, तो क्या अलग अलग हदीसों में आने से क्या ये 5 की जगह 6 हो जाता है या कोई चीज़ बढ़ जाती है दिन में? ये कोई चीज़ बढ़ती नहीं है। तो ये फ़र्क ज़हन में रखें कि वसीला और असल चीज़ जो वसीले के ज़रिए नकल हो रही है, तो दीन में कोई चीज़ इज़ाफ़ा नहीं हो रहा। क्या सही बुखारी ने कोई चीज़ बढ़ा दिया, नमाज का टाइम बढ़ा दिया, नमाज का वक्त बढ़ा दिया, रकत बढ़ा दिया, क्या चीज़ ऐड हो रही है? यानी जो नबी के ज़माने में जो चीज़ थी उससे प्लस क्या कर रही है सही बुखारी? कुछ प्लस नहीं कर रही है। तो आप एक हदीस आप 10 किताबों में पढ़ो तो उसमें इस्लाम की कोई चीज़ बढ़ाई नहीं जा रही है। तो अगर कोई चीज़ बढ़ा देते हैं इमाम बुखारी, तब आप कहते हैं कि चलो ये चीज़ दीन में नया हो गया। लेकिन इमाम बुखारी कुछ बढ़ा नहीं रहे, वो तो जो चीज़ है उसी को आगे नकल कर रहे हैं, और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना। भाई लिखने के बारे में अल्लाह के रसूल की हदीस है कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़, इस मुँह से जो कुछ निकलता है वो हक़ है, लिखो। तो लिखना ही तो कोई बिदअत नहीं, लिखने की इजाज़त मौजूद है। तो लिखने से कोई चीज़ बढ़ नहीं जाती है, नबी की बात ही लिखी जाती है, उसी को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। और अल्लाह के रसूल ने कहा भी, हदीस भी है कि नज़्ज़रल्लाहु इम्रन समिअ मिन्ना हदीसन, अल्लाह तरोताज़ा रखे उस शख्स को जिसने हमसे कोई हदीस सुनी है, उसे आगे फॉरवर्ड किया। तो ये तो सुन्नत पर अमल है, यानी हदीस पढ़ना, सुनना, लिखना, आगे नकल करना, ये कहाँ बिदअत है? ये कैसे बिदअत है? ये जो एक्टिविटी है, जो अमल है, ये तो इस पर तो दलील मौजूद है। और फिर इस अमल के जरिए जो चीज़ फॉरवर्ड की जा रही है, दीन को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की जा रही। बगैर कोई चीज़ ऐड किए हदीस को आगे रवायत करना, चाहे लिख कर चाहे ज़बानी, ये सुन्नत रसूल है, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक है, और दीन में कोई चीज़ इजाफा नहीं हो रहा है। इसलिए इसको बिदअत करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। ये हदीस की किताबों को कोई कह दे कि बिदअत है। और बेसिक बुनियादी बात यह है कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्दी जमीआ, सूरह बकरा की जो आयत है, आयत नंबर 29, कि अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ जमीन पर है। तो जमीन पर ये माइक भी है, जमीन पर किताब भी है, जो जरिया है बुखारी की हदीस पहुंचाने का। अब किताब के अलावा हम देखते हैं मोबाइल में भी एप्स वगैरह के जरिए पहुंचाई जा रही हदीस, लैपटॉप हो सकता है कोई इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ जमीन पर है, तो जमीन पर जो कुछ है अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, यानी कि दुनियावी चीजों में जो चीजें हैं वो सारी चीजें हलाल है जब तक साबित ना हो जाए कि हराम, क्योंकि जमीन में दुनिया पे शराब भी है, तो शराब हराम में बता दिया गया कुरान हदीस में। लेकिन इबादत में ऐसा नहीं है कि कोई कहे मैं सर पे हाथ बांध के नमाज पढ़ूंगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वही कहां दिया नहीं बांध सकते। वहां पे कायदा यह है कि सारी चीजें हराम है, सिर्फ जो साबित हो गया हलाल वही हलाल। अब यहां क्या मामला है कि जो चीज बिदअत नहीं है, यानी दुनियावी मामलात, हाँ, यानी कि आप अगर कोई लैपटॉप यूज कर रहा है, कोई माइक यूज कर रहा है, और अगर उस चीज को कोई बोले हाँ ये बिदअत है, यानी जो चीज बिदअत नहीं है उस चीज को बिदअत बताकर असल बिदअत को पास कराना चाहते हैं। यानी कि जो दीन में नई चीजें हैं, कि भाई जो दीन की हिफाजत अल्लाह ताला ने की है, इसमें कोई नई चीज नहीं आ सकती, तो ये दीन की हिफाजत अल्लाह ने की है। और ये जो तमाम लोग जो इस तरह से कर रहे हैं, काश के ये लोग जानते कि भाई जो ओरिजिनल दीन है वो अल्लाह ताला का भेजा हुआ दीन, उसके अंदर कोई रद्द बदल नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई नई चीज नहीं आ सकती। कोई नई चीज आएगी फहुआ रद्द, वो चीज रिजेक्टेड है। वाज़ेह हदीसें हैं, फिर भी कहाँ पता नहीं लॉस्ट है, अल्लाह ताला हिदायत दे।